भी मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अपनी ज़िंदगी ऐसे नहीं बितानी है, अपने सपने पूरे करने, अपनी ज़िंदगी जीनी है। बता दिया सबको कि आगे बढ़ना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ, नहीं पता था कुछ लोग हैं जो मेरा फ़ायदा उठाना चाहेंगे। When I saw the tree fell down, I got deeply pained to see that. And I saw a few birds died. And I asked the person, how can he do so? I was questioning him. The person and his neighbors, everyone surrounded me and they started mocking me, teasing me, scolding me. I found that the condition of women in our society is still not what we see on TVs and social media. So a lot of things motivated me to get into politics. For the first time in history of Chomu, any female candidate got a ticket from any national party. She was targeted for trying to make it on her own. She was made fun of because she showed empathy towards an endangered bird. She decided to make a difference by going off the beaten track. She has a story to tell, and what an inspiring one. This International Women's Day, we decided to break the mold and introduce you to interesting stories of women, not from boardrooms or corporate offices, but from the grassroots. Women who decided to follow their beliefs and fought against all odds to take the lesser-known path. It is Saturday, the 8th of March. From the Economic Times, I'm your host Nidhi Sharma, and you're listening to The Morning Brief. First up, the gritty Shaheen Malik. In 2009, Shaheen was in the third semester of her MBA and working as a student counselor at Panipat. One day, as she was standing to cross the road, she suddenly felt some liquid on her face and the burning sensation. The acid attack changed her entire course of life. Even after several reconstruction surgeries, Shaheen's left eye is shut. She is still fighting the court case against her perpetrators. But Shaheen turned her struggle into an opportunity. She set up Brave Souls Foundation and has helped 300 acid attack survivors in getting reconstruction surgeries. And she has also set up Apna Ghar, a home for survivors who do not have anywhere to go. So let's meet Shaheen. Shaheen, welcome to the Morning Brief. शाहीन, आप बताएंगे मुझे आपकी कैसी शुरुआत हुई? आपने एक ब्रेव सोल्स फाउंडेशन बनाया है, तो आपके ऊपर जब एसिड अटैक हुआ था तो क्या स्थिति थी और आपको क्या लगता है क्यों अटैक किया गया आपके ऊपर? तो निधि, बचपन से ही मैं एक ऐसी माहौल में रही जो बहुत ही कंज़र्वेटिव था, जहाँ पर लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था ज़्यादा। स्कूलिंग भी बहुत मुश्किल से हुई और ग्रेजुएशन में भी बस आपको कॉरेस्पॉन्डेंस कराया गया। मैं बहुत पढ़ना चाहती थी, पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन क्योंकि घरवालों को नहीं था इतना, तो उन्होंने मुझे उस चीज़ में सपोर्ट नहीं किया। और मेरे एरिया में जो भी लड़कियाँ रहती थी, ज़्यादातर उनको 10th-12th करके उनकी शादी हो जाती थी। तो मतलब किसी के कोई ऐसे सपने ही नहीं थे। पर मैं थोड़ा अलग सोचती थी। उस एरिया में रहने के बावजूद भी, उस मोहल्ले में रहने के बावजूद भी मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अपनी ज़िंदगी ऐसे नहीं बितानी है। अपने सपने पूरे करने, अपनी ज़िंदगी जीनी है। तो ये सारी चीज़ों को ही सोचते हुए मैं 23 इयर्स की थी और मैं अपना घर छोड़कर हरियाणा के एक शहर में चली गई, पानीपत, जहाँ पर मैंने एमबीए में एडमिशन ले लिया। और वहाँ पर क्योंकि मुझे खुद को भी सर्वाइव करना था, तो मैं एज़ अ स्टूडेंट काउंसलर जॉब भी करने लग गई। The job seemed like a fresh, promising start for Shaheen, but that was not to be. और मैं काम कर रही थी तो वहाँ पर जो मेरा बॉस था, वो बहुत पॉसेसिव था मुझे लेकर कि किसी से बात नहीं करने देना और मतलब बिना टाइम के रोकना और अपने
कैबिन में बिठा के रखना, ज़बरदस्ती। थोड़े दिन मैंने टॉलरेट किया, लेकिन फिर उसके बाद मुझे लगा कि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। और क्योंकि मुझे ये मौका मिला था अपने आप को प्रूव करने का घर से बाहर निकल कर कि मैं कुछ कर सकती हूँ। मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना था और अपनी पढ़ाई भी आगे जारी रखनी थी। लेकिन वो चीज़ें बढ़ती जा रही थी। मैंने कोशिश की कि मैं वहाँ से जॉब छोड़कर कहीं और कर दूँ, पर वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल था। उसने मुझे कहीं नौकरी नहीं करने दी। इन चीज़ों को देखकर कहीं न कहीं जो उसकी वाइफ़ थी, वो भी मुझसे जेलस फ़ील करती थी कि मतलब क्यों ये ऑफ़िस में है? उन दोनों के झगड़ों के बीच में बेसिकली सफ़रिंग मेरी हुई। तो क्या हुआ कि एक दिन जब मैं अपने ऑफ़िस से नीचे उतर रही थी, शाम के 6 बजे थे, तो ऑफ़िस के सामने मैंने देखा कि कोई एक लड़का है रोड पर जो मुँह पर रुमाल बाँध कर खड़ा है। और जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, उसने कुछ एक ग्लास भरा हुआ लिक्विड मेरे चेहरे पर एकदम से डाल दिया। मुझे आज भी याद है, उसका कलर ग्रीन था। तो जैसे ही वो डला, गाढ़ा-सा था, मेरी स्किन पर बहुत बर्निंग सेंसेशन होने लगी। और बर्निंग सेंसेशन होने के बाद मुझे ये एहसास हो गया कि ये एसिड है। और जैसे ही मुझे ये एहसास हुआ कि ये एसिड अटैक है, मुझ पर तेज़ाब डाला गया, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मतलब मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मैं सिर्फ़ ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही थी। सड़क से वापस भागी और भागकर मैं वापस नीचे एक ऑफ़िस था, वहाँ गई। लोग भीड़ बना के मुझे देख रहे थे, कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। After what seemed a painful eternity, someone helped Shaheen get medical aid. हॉस्पिटल जाते-जाते मेरी दोनों आँखें बंद हो चुकी थी। एक आँख में तो एक्सट्रीम मतलब एसिड भर के गया था, दूसरी में कुछ ड्रॉप्स गई थी। हॉस्पिटल गई, कपड़े काट कर उतारे गए। वो एक स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। मैं शॉक में थी कि क्यों हुआ मेरे साथ? किसने किया मेरे साथ? मतलब ऐसा मैंने क्या किया है जिसकी सज़ा मुझे ये मिली? बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे। But then, no hospital would take her in. उन्होंने बोला ये पुलिस केस है, ऐसे तो एडमिट नहीं होगा। फिर बहुत बात की कि पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है, पुलिस कल आएगी क्योंकि दूसरे स्टेट का केस है। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अब 5 लाख रुपए जमा करो। अब एक लोअर मिडल क्लास फैमिली के लिए 5 लाख रुपए जमा करने बहुत बड़ी बात थी, पर किसी तरह फैमिली ने मैनेज करके वो किया क्योंकि उन्हें मुझे बचाना था। Shaheen was attacked at 6 p.m. She got admitted to a hospital 8 hours later. फिर उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा, मैं आईसीयू में एडमिट रही। डॉक्टर से मेरा पूछना था कि मैं कब तक ठीक हो जाऊँगी? डॉक्टर का कहना था कि 1 साल तो कम से कम ये सवाल मत पूछो। तो मैं था कि मेरे लिए एक-एक दिन, एक-एक घंटा काटना मुश्किल हो रहा है, मैं 1 साल कैसे काटूँगी? और लेकिन देखो ना मतलब आपको तकदीर, पेशेंस सभी सिखा देते हैं। आज 15 साल हो गए हैं, इलाज आज भी चल रहा है मेरा। In the last 15 years, Shaheen has undergone 25 facial reconstructive surgeries. मैं एक आँख से देख नहीं पाती हूँ, कंप्लीटली ब्लाइंडनेस है उसमें। दूसरी आँख में भी पार्शियल विज़न है। बहुत सर्जरीज़ हुई हैं, लाइफ़ लॉन्ग मेडिकेशन रहेगी उसकी मेरी कि जब तक जीऊँगी मुझे उस आँख का ख़्याल रखना है, दवाइयाँ डालनी हैं, कभी भी रात को बिना दवाई डाले, जेल डाले नहीं सोना है। ये सारी चीज़ें हैं, वो मुझे ख़्याल रखना पड़ेगा। A month after her attack, Shaheen mustered courage to go to the cops to identify her attackers. बट अनफॉर्च्यूनेटली पुलिस अगले 4 साल तक मेरे बयान लेने नहीं आई, ना मेरी 164 की स्टेटमेंट हुई। पता नहीं अब कभी वो लोग पकड़े जाएँगे भी या नहीं पकड़े जाएँगे जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। अब मेरे साथ ये मेरे सामने सिचुएशन थी कि फैमिली भी आपको सपोर्ट करना बंद कर देती है क्योंकि कहीं न कहीं ये ना लाइफ लॉन्ग बैटल है अब। Between her treatment and looking for a job, Shaheen wrote to the Haryana government attaching before and after pictures of herself. तो जहाँ हॉस्पिटल में मैं बोल कर आई थी जॉब के लिए, वहाँ से भी कॉल आया कि एक छोटी नौकरी है अगर आप करना चाहें तो और मुझे बुलाया गया। तो वो मेरी पहली नौकरी थी 10,000 रुपए महीना। मीनवाइल ही मेरा कॉल आ गया हरियाणा मतलब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पानीपत से कि आपकी ऐसे-ऐसे हमारे पास एक केस आया, एप्लीकेशन है और उस मैजिस्ट्रेट ने मुझे खुद बात की और कहा कि मैंने आपकी बिफोर आफ्टर फोटोग्राफ्स देखी हैं और मैं पूरी रात सो नहीं पाई कि एसिड अटैक ऐसा होता है। और क्या हुआ उन लोगों के साथ? कौन पकड़ा गया? मैंने बताया कि पुलिस ने कभी कुछ एक्शन लिया ही नहीं। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे बुलाया विद सिक्योरिटी और वहाँ पर फिर मैंने पहली बार जाकर उस मैजिस्ट्रेट को अपने बयान दिए और सब कुछ बताया। मेरा केस फिर से रीओपन हो गया और फिर मेरा केस स्टार्ट हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे पास एक और मकसद है कि मैं उन लोगों को सज़ा दिला सकती हूँ जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। उनको सबक मिलना चाहिए।
तो मैं बहुत दिल जान से लग गई। मैंने अपना केस बहुत लड़ा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली ट्रांसफ़र कराया, फिर ट्रायल रोहिणी में चला, वो हाई कोर्ट में आ गए। हाई कोर्ट ने उनको एक्विट कर दिया ये कहते हुए कि क्योंकि मैंने 4 साल लगाए अपनी स्टेटमेंट देने में। हालाँकि मेरे पास सब कुछ था कि कभी मैंने पुलिस आई नहीं, एक्सप्लेनेशन थी, सर्जरीज़ हुई उस बीच मेरी 18, लेकिन हाई कोर्ट ने उनको एक्विट कर दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने मतलब मेरे फ़ेवर में ऑर्डर किया कि इतना हीनियस क्राइम है, इसमें ट्रायल तो बनता है कि चले। फिर वो ट्रायल गया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो ऐसे कितने चक्कर लग चुके हैं और आज 15 साल हो गए हैं। मेरा केस आज भी चल रहा है। 2 अप्रैल को फाइनल आर्गुमेंट पे लगा हुआ है मेरा केस। Her assailants tried an out of court settlement, but Shaheen didn't budge. मुझे पैसा चाहिए मेरे हक का, सेटलमेंट मैं कभी नहीं करूँगी। इवन अभी 2 दिन पहले तक वो लोग मेरे घर के चक्कर काट रहे थे, पर उनको पता है मैं नहीं मानूँगी। Meanwhile, career opportunities started opening up. मैंने जॉब करनी शुरू की, फॉर्च्यूनेटली मुझे अच्छे लोग मिले और उसके बाद मैंने अच्छी-अच्छी जगह पर जॉब की और जिसमें दिल्ली वुमेन कमीशन है, ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क है, एक और ऑर्गनाइजेशन थी, तो मीर फाउंडेशन है, इन सब के साथ मैंने काम किया और मैंने बहुत सीखा। और ये इसलिए भी किया क्योंकि जब मैं ऐसी हो गई थी कि ज़िंदगी में कोई चीज़ मुझे खुशी नहीं दे रही थी, मैं एकदम डिप्रेस हो गई थी। लेकिन जब मैंने ये सोशल वर्क करना शुरू किया कि मैं अपने ही जैसे कुछ और सर्वाइवर्स के लिए काम कर पाई, उनकी ज़िंदगी में रिलीफ ला पाई, लाइक उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिलाया, उनको कॉम्पेंसेशन दिलवा पाई, तो मैंने खुद के अंदर एक फीलिंग महसूस की, एक सैटिस्फैक्शन, एक अचीवमेंट की। उसको ही सोचते हुए ये मैंने अपना ऑर्गनाइजेशन बनाया, ब्रेव सोल्स फाउंडेशन, जिसमें सर्वाइवर्स ही लीड करते हैं कि हमारी अलग-अलग जगह पर हमारे यूनिट हैं। तो मेरा था कि एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ ब्रेव सोल्स फाउंडेशन स्टार्ट किया कि सर्वाइवर को इलाज भी मिले, उनको लीगल एड भी मिले, उनको कॉम्पेंसेशन भी मिले, उन्हें लाइवलीहुड अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिले, उनको हम इंडिपेंडेंट बना पाएँ। और साथ ही जो ये एसिड ओपनली इलीगल सेल हो रहा है, इसको हम बैन करा पाएँ ताकि और लोगों के साथ अटैक ना हो। शाहीन, क्या दिक्कतें आती हैं जब एक एसिड अटैक सर्वाइवर एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश करती हैं, क्योंकि ये एक टोटली जेंडर बेस्ड क्राइम है? तो निधि, जैसे इसमें आपने कहा ये एक जेंडर बेस्ड वायलेंस है, जो कि लड़कियों पर ज़्यादा होता है 90% तक, ठीक है? आज भी जो पेट्रियार्की है वो है सोसाइटी में। आज भी लड़कियों को इक्वल राइट्स नहीं मिलते हैं, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है उसके लिए। दूसरा है कि जब-जब वो बाहर जाने की कोशिश करती हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, तो इस तरह के कुछ लोग हैं जो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस हो गया, एसिड अटैक हो गया, रेप हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं कि कोई उन्हें पीछा कर रहा है, छेड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर तीसरी चीज़ ये है, क्योंकि ऑलरेडी लड़कियों के लिए लाइफ डिफिकल्ट है कंपैरेटिवली बॉयज़ के, तो आपके साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाए तो आपकी लाइफ तो 50 टाइम मोर डिफिकल्ट हो जाएगी। सोसाइटी आपको ब्यूटी की नज़र से देखती है, अब उनकी नज़र में वो आप नहीं रहे। तो सोसाइटी को जहाँ सपोर्ट करना चाहिए वो डिस्क्रिमिनेट करती है। ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं कि मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं और कोई आकर बोल रहा है कि आप अपना चेहरा ढक लो, हमें अच्छा नहीं लग रहा आपको देखकर। एक रीसेंट मैं बताऊँगी अपने यहाँ का कि हम जहाँ पर हैं, हमारा ऑफ़िस जहाँ पर है, वहाँ पर स्टेयर्स पे हमने फ़ोटो लगा दी एक सर्वाइवर की, कुछ सर्वाइवर की। तो उन्होंने कहा कि हमारा दिन अच्छा नहीं गुज़रता, हम सुबह-सुबह जाते हैं तो हम देखते हैं हमें अच्छा नहीं लगता। आप ये फ़ोटो हटाइए, नहीं तो खाली करिए यहाँ से। मैं कहीं जाती हूँ किराए पे घर ढूँढने के लिए, मुझे कोई किराए पे घर नहीं देखता। ये तो मेरे साथ हो रहा है और वो लड़कियाँ जिनको कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ़ एसिड अटैक हो गया, जिनका इलाज नहीं हो पाया, वो कैसे मैनेज करती होंगी? ₹2500 पेंशन मिलती है, 2500 में किसी का गुज़ारा होता है। तो आप सोचो कि ऑलरेडी लाइफ़ डिफ़िकल्ट है वुमेन के लिए, तो वो एसिड अटैक के बाद तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई। शाहीन, आप एक शेल्टर चलाते हो, अपना घर सर्वाइवर्स के लिए, तो क्या आप उनकी काउंसलिंग भी करते हो? आपको रेगुलर काउंसलिंग की ज़रूरत है। इसीलिए हमने हमारे यहाँ इन हाउस थेरेपिस्ट हैं, जो अपना घर में आती हैं, सारे सर्वाइवर्स से बात करती हैं, वीक में 2 बार आती हैं। जो यहाँ नहीं रहते, उनसे फ़ोन पर बात करती हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग देती हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और इतने बड़े ट्रॉमा के साथ तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये सबको मिलनी चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं जितने ज़्यादा सर्वाइवर्स को प्रोवाइड कर सकें। तो हमारा जो अपना घर है, यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग भी देते हैं, उनकी पढ़ाई भी कराई जाती है। जो कुछ एसिड अटैक की वज़ह से रुक गया था उनकी ज़िंदगी में,
फिर से वो रीस्टार्ट करने की हमारी कोशिश रहती है और उसे सक्सेसफुल बनाने की। तो सोसाइटी में अभी जैसे आप बोलते हैं कि आपको अभी भी डिस्क्रिमिनेशन फील करते हैं आप, कोई घर नहीं देता है किराए पे। हुँ। इसके अलावा सरकार की तरफ से क्या मदद हो सकती है? क्या गुंजाइश और क्या है? देखो, पहली बात तो कहीं न कहीं बहुत क्लियर है कि स्टेट का फेलियर है, कि वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रही है, कि एसिड सेल को बैन किया जाए। तो पहला तो है कि वो बैन होना चाहिए और उससे भी पहला है कि जिन पर अटैक हो चुका है, उनके लिए कोई पॉलिसी बनानी चाहिए, सेंट्रल पॉलिसी, कि जिसमें सर्वाइवर्स के रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन के लिए प्रॉपर पूरी चीज़ें हों। उनके इलाज को लेकर, उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर, उनकी एजुकेशन को लेकर, इवन उनकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब को लेकर। क्या एक लड़की जो ब्लाइंड हो गई, वो सिर्फ 5 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन डिज़र्व करती है? 5 लाख तो उसकी 2 सर्जरी में चला गया। उसकी तो पूरी ज़िंदगी और उसे हर कदम किसी का साथ चाहिए चलने के लिए। तो अभी मुझे लगता है कि लैक ऑफ एम्पैथी है, समझते नहीं हैं इस चीज़ों को और क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये हम आम लड़कियों के साथ हो रहा है, किसी ख़ास के साथ नहीं हो रहा है। क्योंकि हम वोटिंग बैंक नहीं है, हम मेन स्ट्रीम में नहीं आते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है अच्छा ठीक है, कुछ हज़ारों पे ही तो हुआ है ना, अभी लाखों पे नहीं हुआ, पर क्या हम वेट करें तब तक? तो बहुत सारे सवाल हैं, जिनका जवाब कोई देने को तैयार नहीं है, पर मैं सवाल उठाती रहूँगी क्योंकि मैं हार तो नहीं मानती हूँ। What you hear is the sound of the adjutant's talk, or the Hargila, and the story of its protector is what we will tell you next. First, namaste, and thank you so much for having me here and having our storks along with you. Purnima Devi Barman, a wildlife biologist from Assam, known across the world for her conservation work with this endangered bird species. Purnima's association with the Hargila runs back to her childhood. I must remember my childhood. I was always fascinated by nature. My grandma connected me with nature. She connected me with storks and many other birds. And she always pointed her finger on a tree or on a bird. So all the time she educated me. I think she is the first Hargila army in my life, and she instilled. Purnima was a young student in 2007, scratching her brains for a subject for her PhD when she came to know the Hargilas, her childhood friends, were actually an endangered species. I never knew, and they always told, my professors always told that this bird is endangered. And it was a question all the time. The birds, the storks whom I saw in my childhood, this is an endangered, and I don't see them now in my locality. They are so rare now. And then I decided to do my PhD. I spoke to my professor and I decided to do my PhD on this bird. The Hargila birds have foul-smelling nests, and so they are considered a bad omen. One day, Purnima witnessed a tree being felled and nests being destroyed by her villagers. And when I saw the tree fell down and the baby birds, the 9 nests where the storks were there, fell down, and I was shocked. I was embarrassed. I was shocked. Maybe because I was a new mother, so I got so deeply pained. I was suffocating, and I asked the person why he did so. How can he do so? I was questioning him. The person and his neighbors and all his friends, families, everyone surrounded me, and they started mocking me, teasing me, scolding me. And one of them told that this bird is a bad omen and it doesn't need to live, and it is a headache, it is a burden, it's like a pest, disease carrier. I found those babies as my own child, as my own daughters. They were so innocent and they look similar. I don't know how. They look similar, my daughters and those birds. It was then that Purnima's campaign began to take shape, first in her mind and soon for real. She started by going back to the same village and offering to clean up after the birds, while keeping their nests protected.
I offered them my help that Dada means elder brother, Dada, I would like to clean your campus every day. I can come. Please be my guide. We all can save together. Please be my guide to save the Hargila. They are our cleaner birds. To Purnima's surprise, the family readily agreed to work with her. So I realized the power of communities and how that willingness and how changing the mindset. And if everyone feel that those birds as their children, like I felt that day, the moment when I was holding the bird for rescue, I still have that heartbeat in me, and I feel that heartbeat every day in my life. So that heartbeat was like my daughters when I was holding them, and same heartbeat. So I realized that everyone should feel that. Purnima started working with women of the village. It wasn't easy to convince them. And they didn't like to come to the meeting. They always rejected me. They kept talking that we have to cook. We cannot come there. This is not priority. We have to cook. So most of the time they were talking about the kitchen. They were talking about the household works. And really they have lots Purnima started to make the conservation part as a part of community activity. From culinary contests to baby shower. We celebrate baby shower. We celebrate our motherhood in such a great way. And in case of animals, in case of birds, in case of Hargila, it is so different. They have to suffer because they are breeding, because they are going to be mothers. So that's why I started organizing baby shower. Naam Kirtans, naming ceremonies. Purnima did whatever she could to convince women to join. And they did. In small numbers first, and then in hordes. Women from the village joined Purnima's mission, her Hargila army. And then one day our mission became so big from such a small band of women. One day we formed Hargila army, more than 10,000 women. And this year, last 2 months back, we estimated how many women we reached as Hargila Army with the pledge program, with the livelihood, training, capacity building, weaving. And now, how to say, it is a very spreading movement. And we found that we have crossed more than 20,000 women as Hargila Army, because we have also expanded to the new nesting colony and new villages. And now it's a big mission. Purnima has turned her conservation army into somewhat of a cottage industry, from traditional mekhla chadors to traditional artifacts. Everything the women make have the stamp or the imprint of the Hargila. When our women sell these products online, we have online platform like pasupaksi.com and also some offline platform who supports to sell our products. And we also have a Stock Sisters Deeperville store near Deeperville wetland, through which also we are empowering many women, and they also sell their products. So Purnima and her mission is now part of conservation programs across the world. She has won several awards, including the Green Oscars in 2024. Her message is clear. Our message, our pledge includes that our environment mission, environment education begins from our own home. I have to bring my daughters, I have to bring my children, my husband. This way, everyone has to bring their family into conservation. And they don't need to do much. They need to protect the trees in their backyard, to protect the wetlands in their backyard or nearby, to protect the paddy fields, protect the birds, small birds which are in the paddy fields, to protect the ponds that they have. And through our Hargila Army, we want to give a voice for the unprotected area, for the biodiversity who lives in our villages, in the wetlands, in our backyard. So this is our message. The prejudices that these women are fighting against are more ingrained in our society than we can fathom. Dr. Shikha Meel Barala, the first woman legislator from Chomu, a constituency in Rajasthan, is an IVF specialist. Every day, she encounters this very prejudice in parents wanting a male child. So haven't things changed? She says she has delivered 11 children of a couple who still hope for a male child. Let's hear from her
how these everyday issues made her choose politics over her primary profession of a gynecologist. Thank you so much for joining us, Dr. Shikha. Dr. Shikha, you were a gynecologist Yeah. and an IVF specialist? Yes. Right. Yes. How did an IVF specialist join politics? You belong to a family of doctors and nobody is a politician. Yeah. If you talk about my entry in politics, first I used to be a doctor. It was also a profession which has a lot of public dealing. I always wanted to become a doctor. I entered my MBBS in batch 2001 from SMS Medical College, and I was among the top 30 rankers in Rajasthan. So that's how the medical journey started. When I entered my medical practice, joining Barala Hospital in Chomu, our family hospital. That was a big turning point in my life. I used to be very much introvert before that. But when I started interacting with my patients, it changed me a lot. And once I got connected with so many people, especially women, I found that the condition of women in our society is still not what we see on TVs and social media. Women are still downtrodden. They are still struggling for higher education or even school education. They are not getting the health schemes. So a lot of things motivated me to get into politics, and I was fortunate that people supported me, and now I'm representing them in our legislative assembly. How did you step into politics, and also how did you decide to join the Congress? Politics ka decision was not a very deliberate one. While practicing, मुझे लगा कि सिर्फ हॉस्पिटल में बैठकर वो काम नहीं कर सकते जो हम बाहर सोसाइटी में जाकर कर सकते हैं. I started going out to schools and communities for delivering good touch and bad touch lectures and sessions, and then on menstrual hygiene, women's health. So it continued for 7-8 years. Meanwhile, I used to attend Congress political programs because I wanted to raise women's issues and special legislative assembly, Lok Sabha. These are the platforms जब हम नेशनल और स्टेट लेवल पे लोगों की वॉइस को रेज कर सकते हैं एंड कुछ सॉल्यूशंस भी वहां से हम उनके लिए ला सकते हैं. So how difficult was it coming from a non-political background and then making a foray into politics? And how difficult was fighting your first election? Talking about the difficulties I faced, it was you don't have any guidance from your family, proper कोई person नहीं है आपको बताने के लिए कि आपके पॉलिटिक्स में कहाँ जाना है, किन से मिलना है, किस तरह से प्रोग्राम्स अटेंड करने हैं. तो ये बहुत ही एक रॉ तरीके से हमने स्टार्ट किया, एंड जो सोशल वर्क था दैट बिकेम लाइक फाउंडेशन. फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ चोमू, एनी फीमेल कैंडिडेट got a ticket from any national party. So what are the issues that you thought the people wanted raised? If I talk about Chomu only, then our main issues were water crisis. हालांकि पूरे राजस्थान की प्रॉब्लम है, एंड सडनली लास्ट 10-15 years में द वाटर टेबल हैज सडनली गॉन डाउन. बाकी प्रॉब्लम्स अगर हम बात करें तो महिलाओं की हैं कि उन लोगों को ये मोटिवेट करना उनकी हेल्थ के लिए कि घर को छोड़कर आज भी उन्हें जरूरत है फर्स्ट टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. उसके बाद वो अपनी फैमिली की सोचें, बिकॉज इफ शी इज हेल्दी देन ओनली शी कैन कीप हर फैमिली हेल्दी एंड शी कैन टेक केयर ऑफ अ फैमिली. तो इस चीज के लिए लोगों को एजुकेट करना, अवेयर करना, ये बहुत मुश्किल था. एंड इस इलेक्शन में विमेन स्पेशली सपोर्टेड मी वेरी वेल. तो एक अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, चाहे हम चोमू की बात करें, चाहे हम पूरे स्टेट की बात करें. तो बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं बट वैकेंसीज नहीं हैं. इंफ्रास्ट्रक्चरल बहुत हमारे यहाँ इश्यूज हैं. बहुत सारी रोड्स हैं जो लास्ट 10-15 years से बहुत बैड कंडीशंस में हैं. सो आई एम ट्राइंग टू एड्रेस द पब्लिक इश्यूज इन अ पॉजिटिव वे. So Dr. Shikha, tell us that what do you think are some issues that need raising right now, but
These conversations are not happening in the public space. I'm talking about women-related issues. One is लोगों की चाह फीमेल चाइल्ड के लिए कंपैरेटिवली कम है एंड मेल चाइल्ड के लिए उनकी एफिनिटी ज्यादा है. So this I also had to face in my medical practice. People used to come कि check कर दो या करा दो कहीं से भी कि लड़का है या लड़की है गर्भ में. So ये चीजें बहुत ही अभी भी prevalent हैं. डाउरी इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा है. तो ये सभी इश्यूज हैं दैट नीड टू बी एड्रेस्ड. तो उसके लिए भी हमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होगा. तभी लोग एक बेटी को प्यार तो बहुत करते हैं पर संभालने से डरते हैं. तो वैसा हमें एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होगा. और विमेन्स हेल्थ एंड विमेन्स सेफ्टी, ये चीजें हमें इंश्योर करनी होंगी. These are just a few stories, but the fact remains that women still need a day to remind the world that they are really half of the world. Hope you enjoyed listening to these stories as much as we enjoyed bringing them to you. This episode was sound designed by Indraneel Bhattacharjee and produced by Neil Ghai. Executive producers Anirban Chaudhary and Arijit Parman. If you liked this episode, do spread the word. All new episodes of the Morning Brief podcast drop every Tuesday, Thursday, and Friday. You can listen in on your platform of choice and, of course, ET's own audio platform, ET Play. All clips used in this episode belong to their respective owners. Credits mentioned in the description. I'm your host, Nidhi Sharma, signing off. Have a great weekend.